Hello everyone. Today we will start from chapter number 3, class 9, atomic molecule, atoms and molecule. Yesterday we learned about what is atoms, the law of chemical combinations. Now we start from what is molecule. What is molecule? A molecule is in general group of two or more atoms that are chemically bonded together. When two atoms are combined each other, they form a molecule. This is the basic definition of molecules. That is tightly held together by attractive force. Atoms are bound together by the attractive force. Molecules, elements. What is molecule elements? The molecules of an element are constituted by the same type of atoms. Molecules of many atoms such as argon, helium, etc. are made up of only one atom. That element, we know that when molecule is formed, more than one atoms are combined together. Okay. If we know about that, for example, when we talk about argon, it means how many molecules are present in the argon element? One molecule is present into the argon element. It means this organ is monoatomic. This organ is monoatomic. Okay. Now when we talk about O2, how many oxygen molecules present in it? 2. It means this is diatomic. When we talk about O3, how many molecules present in it? 3 molecules. It means this is the triatomic. Same thing. It means how many molecules present in an element. That's why it is divided into monoatomic, diatomic and triatomic. Okay. For example, this is the table. Argon. It is the monoatomic. Oxygen, diatomic. Helium, monoatomic. Hydrogen, diatomic. Nitrogen, diatomic. Chlorine, diatomic. Phosphorus, tetraatomic, and sulfur, polyatomic. It means more than 4 elements. It means 4 से ज्यादा अगर मॉलिक्यूल है तो उसको हम पॉलीएटॉमिक कह सकते हैं. ओके. नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल? कंपाउंड. Atoms of different elements joined together in definite proportion to form molecule of compound. For example, if we talk about water molecule, okay, so in water molecule, what is the formula of water molecule? H2O. What is the formula of water molecule? H2O. It means what is the atomic mass of hydrogen? 1. And how many hydrogen molecule present in it? 2. Okay. Now what is the atomic mass of oxygen? 16. It means when we calculate 2:16, it means if 1:8, अगर 1:8 के रेशियो के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर, दे फॉर्म अ कंपाउंड. दिस इज H2O, वाटर मॉलिक्यूल कंपाउंड. क्लियर? कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, this is a different element, oxygen is also a different element, joined together in definite proportion to form molecule of compound. कि ये क्या कर रहे हैं? एक definite proportions में mix हो रहे हैं. कि it means कि what is the definite proportion? 1:8. What is the definite proportion? 1:8. When hydrogen atom and oxygen atom are combined together in 1:8, then it will form a molecule compound.
This molecule compound is H2O. This is the examples of water molecule, hydrogen and oxygen. What is the ratio of mass? 1:8. अमोनियम, इसके अंदर अमोनिया का NH3. ओके, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अमोनिया? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. व्हाट इज द रेशियो? 14:3. ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड. What is the carbon dioxide? How many carbon molecules and oxygen molecules? When carbon dioxide, this is the CO2. Okay, what is the atomic mass of carbon? 12. And what is the atomic mass of oxygen? 16. And how many elements is present? 2. 32. Can we divide it? So when we divide it, we get a ratio 3:8. So this is the when carbon and oxygen molecules are combined together in a 3:8, then they form a molecule compound. This is the carbon dioxide. Okay, now we move on. Our next topic is what is iron. First of all, what is iron? You observe that in your daily life ki everything have a charge. For example, in your previous class, you do a activity. For example, if you rub a scale on your head, and if some paper pieces which is lying on a table, if you put scale on the papers, you observe that जो सभी papers है वो कहाँ move करेंगे? Move towards the scale. Scale की तरफ क्या कर रहे हैं? वो move कर रहे हैं. तो दिस इज द why they move scales. वो स्केल की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं? बिकॉज स्केल हैव अ चार्जेस, scale have a charge, and paper piece they also have a charge. That's why they both are attract to each other and they make a combination. और वो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं. और that's why कि वो आपस में क्या हो रहे हैं? अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. Compound composed of metal and non-metal contain charges species. The charged species are known as ion. जो charged particles होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? Ions. Basically there are two types of ion. A negative charged ion is called anion and the positively charged ion is called cation. When we talk, for example, sodium chloride. Sodium consists of particle are positively charged sodium ion and negatively charged chloride ion. अब ये हम कह रहे हैं कि सोडियम दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोरीन दिस इज द नेगेटिवली चार्ज. हाउ इट इज पॉसिबल? देखो, when we talk about ions, we know that first of all we take sodium element. Okay, we know that what is the atomic number of sodium? 11. This is the atomic number of sodium, 11. When we draw atomic structure of sodium ion, sodium element, this is the atom, this is the nucleus. How many protons present into the sodium? 11. And this is the neutron. Okay, अब if 11 proton present into the sodium element, how many electrons present outermost cell? Yeah, how many electron present in atomic structure of sodium? 11. Because proton is always equals to the electron. If we know that atomic number is 11, that means the electron is 11. कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे? 11. And this is the outermost layer. Okay, now we calculate that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Okay, this is the atomic structure of sodium ion. Okay, now how can we say that ki sodium get positive charge? First of all we observe that in outermost
one element is present, one electron is present into the outermost layer. Okay, so that's why sodium can easily remove this electron. Yes, कि sodium can easily remove this electron. When sodium remove this electron, how many proton present? 11 and electron 10. इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? When we remove this electron, हमने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया. अब कितने प्रोटॉन हुए? 11 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 10. इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 एंड प्रोटॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन 11 है. तो व्हाट इज द चार्जेस ऑफ प्रोटॉन? पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. अगर हम कह रहे हैं इफ इट से दैट कि 11 प्रोटॉन प्रेजेंट बट 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो दैट्स व्हाई द सोडियम गेन पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट सेल. जब ये अपनी आउटरमोस्ट सेल से वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है तो ये कौन सा चार्ज गेन करेगा? पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इसने क्या किया? रिमूव. इफ एनी एलिमेंट रिमूव अ इलेक्ट्रॉन, रिमूव एनी इलेक्ट्रॉन, दैट इट गेन या दैट एलिमेंट गेन पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ क्लोरीन. व्हेन वी टॉक अबाउट chlorine, okay, it means what is the atomic number of chlorine? 17. What is the atomic number of chlorine? Is 17. Okay, now we draw the atomic structure of chlorine. This is the nucleus and proton is 17. ठीक है, प्रोटॉन कितने हमारे? 17. Okay, how many electrons? 17. इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 17. Okay, now calculate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, now this type we arrange all 17 electrons in the atomic structure of chlorine. Okay, now what happened? There are 7 electron present into the outermost cell. What happened? कि what is the अगर हम कहें यूं कि जो इसकी outermost cell है उसकी कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो ये कैपेसिटी कितनी है? 8. ठीक है, कि इट मींस कि ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है? 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं. कि मतलब हमने जो देखो फर्स्ट जो थी हमारी के, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जो हमारी एल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब जो हम एम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो इस एम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. बट कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इट मींस 7 इलेक्ट्रॉन्स है. तो क्या ये क्लोरीन मॉलिक्यूल इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है? इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. इट मींस कि इफ क्लोरीन गेट अ इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इनटू द, अब इसमें देखो, इसमें इसने क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो प्रोटॉन कितने थे हमारे पास? 17. 9 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास? 18. इट मींस कि कौन सा चार्जेस ज्यादा है? नेगेटिव चार्ज कौन सा है? ज्यादा है. तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इट मींस कि जो क्लोरीन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. इट मींस कि व्हेन एनी एलिमेंट, इफ एलिमेंट गेन अ इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इनटू द नेगेटिव चार्ज. ओके, तो इट मींस कि कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है. क्या? किसको? 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है. व्हेन सोडियम रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव चार्ज. ओके, क्लोरीन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट कन्वर्ट इनटू द नेगेटिव चार्ज.
माइनस, इट मीन्स कि सोडियम पॉजिटिव एंड Cl negative. It positive and negative charges attract to each other. We know that same charges attract to each other and opposite charges to same charges repel to each other and opposite charges attract to each other. It means कि जब सोडियम एंड क्लोरीन चार्जेस है तो ये क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट चार्जेस है, वो दोनों को अट्रैक्ट करेंगे एंड दे मेक अ कंपाउंड सोडियम क्लोराइड. क्या बना रहे हैं ये, सोडियम क्लोराइड. क्लियर कि सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ने क्या किया, अट्रैक्ट हुए और क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं. Now, what is chemical formula? The chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. What is chemical formula? The chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. For example, हम कह रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हम उसको सिंबॉलिक, वी नो दैट इन द वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. ठीक है, तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, H. ओके, व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, O. ठीक है, तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, कि ये किसमें, इसकी क्या कंपोजिशन है, H2O. Okay, how water molecule combine together, hydrogen 2 molecules and 1 molecule of oxygen, they combine together, they form a compound. Okay, and this is the chemical formula of H2O, hydrogen and oxygen का. The chemical formula of different compound can be written easily. The combining power of atom, ये important point है, this is the very important point. The combining power or capacity of an element is known as its valency. Okay, what is valency? The combining power. Combining power, it means कि we know that when we talk about sodium chloride के अंदर हमने देखी ये चार्जेस थे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे कौन सा चार्जेस था, पॉजिटिव, और क्लोराइड पे कौन सा चार्जेस था, नेगेटिव. तो उसमें क्या कैपेसिटी थी, वो दोनों मॉलिक्यूल एक बना सकते थे, कंपाउंड बना सकते थे. तो जो कंबाइनिंग पावर है, कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, कि वो कैसे डिनोट कर रहे हैं हम उसकी वैलेंसी से. कि फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, ठीक है, एंड क्लोरीन आयन है, ठीक है, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है, बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो दैट्स वाई इसकी वैलेंसी क्या हुई, 1 हुई. ठीक है, क्लोरीन कितने एलिमेंट्स गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्लोरीन, क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितनी थी, 1 की स्पेस थी. तो जब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं, कि ये सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इनकी कितनी कैपेसिटी है, 1 है. तो ये हमारी सोडियम की कितनी कैपेसिटी है, 1 है, और क्लोरीन की कितनी कैपेसिटी है, 1 है. तो दोनों क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा केमिकल फॉर्मूला NaCl. तो हमारा क्या केमिकल फॉर्मूला हो गया, NaCl. Valency can be used to find out how the atom of an element will combine with the atom of another element to form a chemical compound. कि इसके अंदर कि ये कितने ऑक्सीजन की हमारी ये है कि कैपेसिटी, व्हाट इज वैलेंसी. वैलेंसी क्या है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो एटम है, वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एटम
विल कंबाइन विथ द अनदर एलिमेंट, कि जो दूसरे एलिमेंट है उसके एटम से कितने वैलेंसी, उसके पास कितनी वैलेंसी है जिससे वो कंबाइन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट NH3, ठीक है, NH3 की हम बात करें तो इसके अंदर नाइट्रोजन कितने, इसके पास नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है. देखो वन मोर टेबल, ये हमारे पास एक टेबल है. हम इस टेबल की हेल्प से, देखो दिस इज द टेबल, हम इस टेबल की हेल्प से ये निकाल सकते हैं कि क्या, देखो अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम पे क्या चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पे. पोटेशियम पे कितना चार्जेस है, K+, इट मीन्स किसकी वैलेंसी कितनी है, 1. देखो ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है वैलेंसी, ठीक है, 1 वैलेंसी की, सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है 1. अब वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ कैन वी फाइंड आउट वैलेंसी. वैलेंसी हम फाइंड आउट करेंगे फॉर एग्जाम्पल कि हम कह रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, ओके, सबसे पहले हम सिंपल हाइड्रोजन की लेते हैं, ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं. अगर हमें केमिकल फॉर्मूला H2O बनाना है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ H2O, तो वो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ, सबसे पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, क्योंकि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. देखो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6, एटॉमिक नंबर क्या है 6, सॉरी 8. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, ठीक है. इफ वी ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, हमने क्या करा, एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा ऑक्सीजन का, ठीक है. तो आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कितने, सॉरी इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर में कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने हो गए हमारे 8, ठीक है. और वी नो दैट कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है. अब इसको आउटर में सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. इट मीन्स कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई 2. इट मीन्स कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है. दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट द वैलेंसी, ठीक है. अब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए 2 H2 और ऑक्सीजन की कितनी हो गई 1. तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ water molecule, this is H2O, okay. That's why we calculate our valency, and according to the help of valency we calculate the chemical formula, ठीक है. रिमेनिंग टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे.